Today's topic is goodwill, and this is very important term for you when we are going to do the accounting for partnership. At that time, you will have to calculate again and again the amount of goodwill. At that time, you will feel some difficulty. So, firstly, we should know what is goodwill. According to Lord Allen, goodwill is nothing more than the probability that the old customers will resort to the old places. There are different type of methods of calculating the goodwill. We will learn further. Now we will see the features of goodwill. Firstly, the most rememberable thing is goodwill is an intangible asset. You will have to learn. What is intangible or tangible assets? We have learned in the previous class. The most important thing is also goodwill is not a fictitious asset, and the value of goodwill depends upon subjective judgment of the valuer. What are the types of goodwill and how many types of goodwill and how will we calculate the goodwill? Students, as we have understood what is goodwill, I am repeating again. If any company, any firm or any person does good activities and he earns his name, that is called goodwill. But in the accounting term, it is a monetary term, and the most important thing is what is the value of that business enterprise or business entity in the market. That will be called goodwill. After understanding the term goodwill, we will see how many types of goodwill are there. The first one is purchased goodwill. You will have to learn the types of goodwill. How many types of goodwill? There are two types of goodwill. The first one is purchased goodwill and second one is self-generated goodwill or non-purchased goodwill. When we are going to purchase a business house, at that time we will see the first one is it arises on purchase of business. When we are going to purchase a business from other person, at that time we will see what is the position in the market of that company. Refer issue of shares. We will learn when we learn the company accounts what is shares and how we can issue at that time. But the main thing is it arises on the purchase of business. What is the market value? Market value, how do you find? How many market means share market. Market means stock market. Stock market में उसके शेयर्स की क्या पोजीशन है? एक्चुअल में वो बिजनेस की बात होती है कि कितनी उसकी वैल्यू है. लेकिन पार्टनरशिप में शेयर्स नहीं, वो तो कंपनीज हो. तो पार्टनरशिप में हम कैसे सीखेंगे कि पार्टनरशिप में उसका प्रॉफिट कैसा है, कितना आ रहा है, कितने, और भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन में हम तब देखेंगे, तब समझेंगे कि जब उस समय आपको पेड करना होगा तो जितनी की उसकी एसेट है और उसकी लायबिलिटीज कितनी है, केवल वही नहीं तो उसके अलावा बहुत लंबे समय से अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसकी सेल बहुत अच्छी हो रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा पैसे में आपको देगा. तो जितनी की कॉस्ट है उससे ज़्यादा पैसे अगर हम पेड कर रहे हैं तो वो जो है वो आपको पेड करने पड़ेंगे, वो उस तरह परचेज गुडविल होगी. एंड द सेकंड वन इज इट इज एन एसेट फॉर द कंपनी. ये कंपनी के लिए एक एसेट होती है. और थर्ड पॉइंट इज दिस गुडविल इज जनरली amortized within 10 years. जो गुडविल होती है वो 10 years में उसकी
वो उसकी लाइफ है, कोई भी एसेट है उसकी जितनी भी लाइफ है उस लाइफ से हम उसको डिवाइड कर देते हैं और इस तरीके से अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो 10 ईयर्स में वो जीरो हो जाएगी गुडविल। इसलिए आपको कुछ ना कुछ लगातार बेटरमेंट करते रहना होता है आपको। तो इसलिए ये जो परचेज गुडविल कहलाता है। सेकंड वन इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अगर हम कोई बिजनेस परचेज नहीं कर रहे, वी आर नॉट गोइंग टू परचेज एनी बिजनेस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बिजनेस एंड हमें ये देखना होगा जब हमारा बिजनेस चल रहा है तो फिर वो किस लेवल पर पहुंचता चला जा रहा है, उसका नाम बढ़ता चला जा रहा है, उसके प्रॉफिट्स बढ़ते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं मार्केट में। तो उस समय जो होती है हमारी मार्केट में गुडविल खुद से क्रिएट होती है। हमने परचेज नहीं करी है, हमने अपने बिजनेस एंटिटी में अपनी गुडविल खुद से क्रिएट की है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब इसके पॉइंट्स क्या हैं? This goodwill is not purchased, rather it is created by the efforts of the partner. किसी भी पार्टनरशिप फर्म में या सोल प्रोप्राइटर भी है या कोई पार्टनरशिप भी है, तो हम इस समय बात कर रहे हैं पार्टनरशिप चैप्टर की, इसलिए हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर की भी अपनी गुडविल क्रिएट होती है और कंपनी की भी क्रिएट होती है। तो गुडविल एक ऐसी टर्म है वो कहीं भी क्रिएट हो सकती है, लेकिन जैसे आपके एफर्ट्स होंगे, जैसे आपने काम किया उसके अकॉर्डिंगली आपकी गुडविल क्रिएट होगी। तो आपको परचेज नहीं करनी है, आपकी गुडविल खुद से मार्केट में क्रिएट हो जाती है। बहुत अच्छी कंपनी होती है, बहुत अच्छी फर्म्स होती है। तो अच्छी का मतलब क्या होता है? अच्छी का मतलब सिर्फ यही होता है कि उनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा है। अच्छी का मतलब देखने में अच्छी नहीं है, अच्छी का मतलब उनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, उनका प्रोडक्ट का नाम एकदम से मार्केट में आते ही बिक जाता है। और इसी के साथ साथ हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दिस गुडविल इज नॉट परचेज, बिकॉज परचेज गुडविल इज अनदर पॉइंट एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट परचेज, इट इज एन एसेट इन द बुक्स। और ये बुक्स में एक एसेट मानी जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिस के अकॉर्डिंग। आई होप आपको गुडविल का समझ में आया होगा कि गुडविल कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे गुडविल की अमाउंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।